Last time we discussed about the pollination, in which we cover the pollination take place by the Anopheles, means by the wind, and also by the insects or ants. ठीक है, in few species of Ephedra. And one important point, pollen drop contains pollen drop are released from the uh, ovule टिप फ्रॉम इट्स माइक्रोपाइलर टिप कह सकते हो एक तरीके से आप, ठीक है। जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल की जो माइक्रोपाइलर टिप है, यहाँ से क्या निकलती है, एक पोलन ड्रॉप निकलती है। एंड इट्स पोलन ड्रॉप contains several amino acid, peptides, malic acid, citric acid, and inorganic phosphate and sugar also. The sugar content is about 25%. So that due to the large amount of sugar in the pollen drop, it attracts the insects and ants, and these insects and ants help in the pollination, and the pollination take place by the insects or ants is known as entomophily. Same things are written here. After that, the pollen grains are adhere, means they are stick on the pollination drop, and these pollination drop are sucked inside, means it after few time these pollen grains are stick here, and after that this pollen drop suck inside the ovule through its micropylar tube, and ultimately these pollen grains are reach into the pollen chamber. So look like this is the pollen chamber, they are finally reach here. After that, development take place in the male gametophyte, which this topic we cover in the last slide, last lecture. Ultimately just it's the pollen grains in the pollen chamber absorb the nutritions, absorb the minerals and another stuff, and swell. ठीक है, ultimately they are swell up, and their exine is rupture, and the intine is come out in the form of a tubular structure known as pollen tube. So this one is the pollen tube. And after that, after the releasing of pollen tube, the first cell which enter into the pollen tube is known as tube nucleus. तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर क्या आपकी दो प्रोथील सेल्स हैं, दे आर अल्टीमेटली डिजेनरेट हो जाती दोनों की दोनों, ठीक है। इसमें आपका स्टाक न्यूक्लियाई है यहाँ पर, और यहाँ पर स्पर्मेटोजेनस सेल्स है और ट्यूब सेल्स है। 5 सेल स्टेज थी ये। आफ्टर दैट व्हेन द पोलन ट्यूब इज come out, when the pollen tube is formed, the first cell which enter into the pollen tube is known as tube nucleus. After that, after the formation of pollen tube, spermatogenous cells divide into the two equal nuclei known as two male equal male nuclei, या फिर कह सकते हो two male sperm. तो यहाँ पर sperm number 1, sperm number 2, and after that the stalk nucleus is also enter into the pollen tube. And the pollen tube enter into the ultimately the archegonium neck, which is gametophytic in nature, and ultimately ये जो pollen tube कहाँ बन रही है, ये मान लो आपका pollen chamber था, और यहाँ पर क्या है, ये archegonium neck थी, और यहाँ पर आपका archegonia है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये pollen tube यहाँ पर ग्रो कर रही हैं, यानी कि दे आर अल्टीमेटली जर्मिनेट कह सकते हो इनटू द आर्कियोनियल नेक, which is gametophytic in nature. Unlike the pinus, where the pollen tube initially grow into the sporophytic tissue. Ultimately, these pollen tube are reach into the archegonia, where it's deliver its whole content along with the टू मेल न्यूक्लियाई, एंड अल्टीमेटली ये जो पोलन ट्यूब थी ये आर्किगोनिया पे यहाँ पे लैंड कर जाएगी और अपना जो कंटेंट है यहाँ पे रिलीज कर देगी अलोंग विद इट्स टू मेल न्यूक्लियाई। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसको इन द हेडिंग फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द पोलन ट्यूब कंटेन्स दीज थिंग्स
ठीक है। पेनिट्रेट इनटू द नेक्स्ट सेल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्चार्ज इट्स ऑल 4 न्यूक्लियाई इनटू द एग, वन मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद द एग एंड फॉर्म द जाइगोट एंड अनदर मेल न्यूक्लियाई, इसको आप इसकी जगह पे आप एक अनदर साइंटिस्ट हैं जिसको इस डबल फर्टिलाइजेशन को डीपली स्टडी किया था, उसका नाम है फ्राइडमैन, FRIED, सॉरी FRE, यस यही था भाई, FRIEDMAN, ठीक है। इन 1990 to 1992, तो इसकी जगह पे अपने ये फ्राइडमैन का नाम याद रखना है। इसने जो इफिड्रा ट्राइफ्यूका है, ठीक है, फोलिटा में इसने खान 1941 में इसने ऑब्जर्व किया था, बट इन फ्राइडमैन इन इफिड्रा नेवाडेंसिस, एक तो स्पीसीज ये है और एक है इफिड्रा ट्राइफ्यूका, ठीक है। इन दो स्पीसीज में फ्राइडमैन ने इस डबल फर्टिलाइजेशन को फर्दर डीपली स्टडी किया था अप टू इट्स एम्ब्रो डेवलपमेंट भी, यानी कि इसने तो जस्ट ये बताया था कि इसके अंदर इन खान 1941 और अलोंग द खान अनदर साइंटिस्ट इज नोन एज मोसेल लैंड हेर्जफोल्ड, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिसने इफिड्रा के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व किया था एक्चुअली, ठीक है। बट ऑब्जर्व करना अलग बात होती है और उसको फर्दर डिटेल्स में स्टडी करना अप टू इट्स एम्ब्रो डेवलपमेंट, वो अलग बात होती है, ठीक है। तो फ्राइडमैन ने इन 1990 एंड अप टू 1992 इसने इफिड्रा नेवाडेंसिस और इफिड्रा ट्राइफ्यूका में इस डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व किया था। भाई डबल फर्टिलाइजेशन मींस वन मेल जो गेमेट्स होता है वो तो फ्यूज करता है एग के साथ, ठीक है, आर्किगोनिया के अंदर एग है उसके साथ फ्यूज कर लेगा। दूसरा जो मेल गेमेट्स है वो फ्यूज करता है वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियाई के साथ, और इस तरीके से क्या बन जाते हैं यहाँ पर दो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, दिस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड अल्टीमेटली इसके बाद क्या होगा, ये दोनों यानी कि आर्किगोनिया था, आर्किगोनिया में एक वेंट्रल न्यूक्लियाई था, एक एग न्यूक्लियाई था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेल न्यूक्लियाई थे, ठीक है, 2 मेल न्यूक्लियाई थे ये, इन 2 मेल न्यूक्लियाई ने एक तो इसके साथ फ्यूज कर लिया एग के साथ और क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, ठीक है। और दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई था उसने इस वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना ली भाई, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लिया। ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है इट्स लुक लाइक एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, जैसे कि एंजियोस्पर्म में जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो जब जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है ये तो जाइगोट बना लेगा, जो कि जाइगोट का डेवलपमेंट होगी क्या बनेगा आपका आगे कोटलेडन्स बनेंगे, सीड बनेगा एक्चुअली, ठीक है। तो दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई था जो फ्यूज हुआ था इस वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियाई के साथ, उसने जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाया है इट्स लुक लाइक या फिर इट्स फंक्शन लाइक एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई को इस केस में हम बोलेंगे एम्ब्रो न्यूरिशिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया यहाँ पर इस केस में एम्ब्रो एंड नूरिशिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट इज ए इम्पोर्टेंट इवेंट एक्चुअली, ठीक है, विच सजेस्ट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फिर इवोल्यूशनरी कह सकते हो आप, एक लिंक बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंड आल्सो एक्सप्लेन द एंसिस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म दे मे बी जिम्नोस्पर्म, यानी कि इस मैकेनिज्म से इस ये जो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है वो ये शो करता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है
यानी कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली फ्राइडमैन ने एक्सप्लेन यानी कि बताया कि ड्यू टू दिस डबल फर्टिलाइजेशन इट एक्सप्लेन द कॉमन एंसेस्टर ऑफ epiderals and nitales, epiderals and nitales एंड आल्सो एंजियोस्पर्म भाई, यानी कि इन तीनों का जो एंसेस्टर था वो एक ही था एक्चुअली। तो इफिड्रेल्स और निटेल्स आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म अलग से ग्रुप हो गया। तो मींस इनका जो मींस इनडायरेक्टली वी कैन से दैट द एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म इट मे बी जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। यानी कि एक वैसे तो सभी को पता है कि भाई इससे इवोल्व हुए थे, यानी कि उसके जो एंजियोस्पर्म हमारे वो एडवांस प्लांट हैं और जिम्नोस्पर्म से ही वो ट्रांजिट हुए हैं एक तरीके से। तो मीन्स ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ एग्जांपल होते हैं, वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि भी कैसे आप कह सकते हो कि एंजियोस्पर्म के जो एंसेस्टर हैं वो इफिड्रेल्स थे या फिर कह सकते हो निटेल्स थे। मेरी बात आ रही समझ में यहाँ तक भाई? सर जो वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस होता है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, तो इसके नहीं नहीं, अंदर इस केस में नहीं फर्टिलाइजेशन। होता ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। यानी कि इफिड्रा की जो स्पीसीज इन्होंने मेंशन की, इफिड्रा फोलिएटा में ऑब्जर्व किया है, इफिड्रा नेवाडेंसिस में ऑब्जर्व किया है, ठीक है, इफिड्रा ट्राइफिका में ऑब्जर्व किया है। इससे पहले जो मैंने पढ़े थे ना, जैसे कि पाइनस पढ़ा था या फिर वैसाइकस पढ़ा था, उस केस में क्या था, जो वेंट्रल न्यूक्लियाई था वो डिसऑर्गेनाइज या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता था। तो हमने यहाँ पर मैंने इफिड्रेल्स और निटेल्स में यहाँ पे लिखे, मैंने ये देखो इफिड्रेल्स लिखा है और ये निटेल्स लिखा है। मैं सारे जिम्नोस्पर्म को नहीं कह रहा हूँ, यानी कि मैं सभी को लिंक नहीं कर रहा हूँ विद एंजियोस्पर्म, बट ये जो डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म देखने को मिला है, फिर ऑब्जर्व हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है एक्चुअली, ये आपके दिस डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमिना इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन द इफिड्रेल्स एंड निटेल्स, नॉट इन द पाइनस और साइकेडेल्स। पाइनस इन द सेंस कॉनिफेरल्स, ठीक है। तो तभी मैंने कहा कि इफिड्रेल्स और निटेल्स इन और एंजियोस्पर्म भाई, इन तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ये तो हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म में आते हैं ये, और जिम्नोस्पर्म से आपके कॉनिफेरल्स और साइकेडेल्स भी आते हैं। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज, तो दिस वन इज द दिस पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब आ रही है, किधर से आ रही है, यहाँ पर क्या है, नेक कैनाल सेल्स ऊपर, ठीक है, इस टाइप से नेक कैनाल सेल्स हैं, उनसे ये जो पोलन ट्यूब आपकी ये यहाँ पे एंटर करिंग टू द आर्किगोनिया, दिस स्ट्रक्चर इज आर्किगोनिया, ठीक है। और अल्टीमेटली इसका जो कंटेंट है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद यहाँ पर जो टू मेल न्यूक्लियाई थे, वन इज फ्यूज विद द वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियाई, ठीक है, और अनदर मेल न्यूक्लियाई इज फ्यूज विद द एग एंड फॉर्म द जाइगोट। नेक्स्ट इज द एम्ब्रोजेनी या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। तो इसके अंदर थोड़ा मैं आपको एक बार बता दूं इस डायग्राम से, नहीं इससे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, ये इसका क्या है, ये आपका, इसको यूं कह सकते हो आप, ये आपका आर्किगोनिया है, ठीक है, जो ए में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या था, आपका एक वेंट्रल न्यूक्लियाई था और एक आपका एग था, ठीक है। मेल न्यूक्लियाई ने फ्यूज हुआ, जाइगोट बना लिया, ठीक है, और ये जो वेंट्रल न्यूक्लियाई था इसके साथ अनदर मेल न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ और उसने क्या बना लिया, यहाँ पर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लिया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसके बाद क्या होता है, ये जो जाइगोट था आपका, ये था टुवर्ड द चलाजल एंड साइड, इसका चलाजल एंड है और ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा और अल्टीमेटली वन एक से क्या, जो इसके बाद जो डिवीजन होगा ना जाइगोट, क्या यहाँ पर डिप्लॉइड है, ठीक है ना, क्योंकि दो हैप्लॉइड से बना तो ऑब्वियसली पता डिप्लॉइड है ये।
इसके बाद इसके अंदर जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और ये 4 यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियर बना लेगा। पहले एक थी सिंगल थी, उसके बाद इन्होंने 4 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बना ली। ऐसे ही जो माइक्रोपाइलर एंड के अंदर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई था उसके अंदर भी डिवीजन होगा और वो भी क्या बना लेगा, 2 माइटोटिक डिवीजन होगा और वो भी क्या बना लेगा, 4 सेल बना लेगा। ठीक है, देखो ये जो फिनोमेना है ना, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन किया था अगेन इस फ्राइडमैन ने ही। ठीक है, इसने क्या बताया, पहले देखो क्या मानते थे कि भाई जो जाइगोट है ना, इससे पहले क्या वैसे तो कंसेप्ट था या फिर हाइपोथेसिस था कि ये जो जाइगोट है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं था एक्चुअली। बिफोर द फ्राइडमैन 1990 द साइंटिस्ट थॉट, ठीक है, यानी कि जो साइंटिस्ट थे जिसने इसको एक्सप्लेन किया था, इनका नाम था भाई लेहमन एंड बियर्ट्स इन 1967। ठीक है, तो मैं अब ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, आपने इनकी नाम याद नहीं रखने हैं, मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लेहमन एंड बियर्ट्स इन 1967। इन्होंने क्या बताया कि जो जाइगोट होता है एक्चुअली, ठीक है, वो क्या करता है, वो डिवाइड करेगा पहले 2 सेल में। ठीक है, एंड दीज 2 सेल, यानी कि सबसे पहले जो जाइगोट था हमारा, यानी कि ये जाइगोट है, ठीक है, डिवाइड करेगा इनटू द 2 सेल, फर्स्ट डिवीजन, एंड दीज 2 सेल माइग्रेट ऑन द अपोजिट साइड, और या फिर कह सकते हो माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट पोल, and after that there is a second division and form the 2, and also second division in the lower one and form the 2 cell, again third division यहाँ पे and form the 4 cell, and ऐसे यहाँ पर third division and form the 4 cell। अल्टीमेटली ये जो 4 सेल ऊपर रहेंगी और 4 सेल नीचे रहेंगी, सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे ए में। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जो आपकी बुक में जो भी लिखा है आपने उसके हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको दोनों थ्योरीज बता देता हूँ, हाइपोथेसिस बता, एक तरीके से कह लो, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे एक्सप्लेन किया था भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हमने अब इसको फर्दर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन 1990। तो 4 सेल, द अपर वन इज फॉर्म्ड बाय द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, माइटोटिक डिवीजन, यानी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई के अंदर क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ और 4 सेल बन गई टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, एंड 4 सेल फ्रॉम द जाइगोट टुवर्ड द चलाचल एंड। उसके बाद क्या होता है, इन सभी सेल्स, इन ऑल द सेल्स के अंदर क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है भाई, यानी कि जाइगोट न्यूक्लियाई को पहले फ्री न्यूक्लियाई होती है ये, उसके बाद जाइगोट जो साइटोप्लाज्म जो होगा वो इनकी चारों इस टाइप से एक कवरिंग बना लेगा और ये इंडिविजुअली 4 सेल हो जाएंगे, 4 सेल नीचे रहेंगे और 4 सेल ऐसे ही ऊपर बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बीच में तो नहीं आ रही लाइन इसी सी में। नो सर। तो यहाँ पर देखोगे आप 4 सेल नीचे हैं मैडम और 4 सेल क्या है, ऊपर हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हुई, 8 हो गई इन द सी डायग्राम। ठीक है, दीज 8 सेल, यहाँ पर भी 8 ही थे एक्चुअली, 8 न्यूक्लियाई थी, उसके बाद इनमें साइटोप्लाज्म की कवरिंग हुई और ये अल्टीमेटली 8 सेल बन गई। और ये जो 8 सेल हैं, ऑल द सेल्स आर पोटेंशियल हैव टू फॉर्म ए इंडिविजुअल एम्ब्रो। ठीक है, यानी कि इन सभी सेल के अंदर पोटेंशियल है कि वो क्या बना सके, एक अपने आप में एम्ब्रो डेवलप कर सकें। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितने होगी, 8 सेल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कह सकते हो अगर 8 सेल, अगर हम आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं, अगर 8 सेल के पास कैलिबर है कि वो अपने आप में एम्ब्रो डेवलप कर सकती हैं, ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, पोली एम्ब्रोनी, एम्ब्रोजिनी बोल रहे हैं हम। ठीक है, विदाउट क्लीवेज, विदाउट क्लीवेज, क्लीवेज होता है भाई टुकड़े करना, ठीक है, तोड़ना 2 पीसेस में।
अगर मान लो, अगर हम इसको ऐसे पढ़ते कि एक सेल थी, इसके अंदर 2 बनी, ठीक है, 2 से फिर 4 बनी, और उसके बाद फिर यानी कि अगर मान लो यहाँ पर जो ये सेल है, अगर एक सेल से ओरिजिनेट होती सारी सारी, ठीक है, और उसके बाद यानी कि एक सेल से क्लीवेज हो गई एक इंडिविजुअल सेल से, ना कि न्यूक्लियाई, ये जो बनी है ये बनी है इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से। यहाँ पर आप देखोगे ना, इससे बैक स्टेज में जाओगे, दे आर ऑल इंडिविजुअल, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल न्यूक्लियाई थी ये, उसके बाद इंडिविजुअली क्या बना इनमें, जो साइटोप्लाज्म की कवरिंग आई है वो बनी है, ठीक है। तो इंडिविजुअली अपने आप में डेवलप हुई हैं ये, ना कि एक सेल से, इसलिए इसको बोल रहे हैं विदाउट क्लीवेज पॉली एम्ब्रोजिनी। सी पार्ट तक क्लियर है? यस सर। तो ये जो 8 के 8 सेल हैं भाई, ये जो 8 सेल्स हैं, दे हैव कैलिबर टू फॉर्म द, कैलिबर कह सकते हो, पोटेंशियल कह सकते हो, टू फॉर्म द प्रॉपर एम्ब्रो, ठीक है। बट ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर स्टफ, देयर इज ओनली, यानी कि सभी के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, सभी के अंदर इनिशियली, सभी के अंदर जो सारी सेल्स हैं ये, ठीक है, सभी के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। बट अल्टीमेटली केवल एक ही सेल के अंदर, जो एक सेल होगी कोई भी एक, ठीक है, वो अपने आप को फुल्ली एम्ब्रो में कन्वर्ट कर पाएगी, फुल्ली कोटलेडेंस में, फुल्ली सीड में कन्वर्ट कर पाएगी। बाकी जो सेल्स हैं वो थोड़ा डेवलपमेंट होगा और वो टर्मिनेट होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो सेल हैं इनमें अपने आप में भी इनकी जो ग्रोथ है होनी स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हो, दे आर स्टार्टिंग इलोंगेटेड, बट out of these only one cell become functional and form the proper embryo, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब यहाँ पर, तो देखो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट एंड लेमन एंड बियर्ट्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि जो मोर देन वन आर्किगोनियम इज फर्टिलाइज्ड इन द ओव्यूल बट ओनली वन डेवलप इन द वन, ये तो आर्किगोनिया की बात होगी, ठीक है। इसके बाद जो जाइगोट बना है, इसके जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर बता दी 3 डिवीजन होंगे और टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे 8, ठीक है। एंड दीज 8 सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही, यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। इसके बाद उनके अंदर लेटर बाद में क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो स्ट्रक्चर बनती है आफ्टर द वॉल फॉर्मेशन इज नोन एज प्रो एम्ब्रो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सी में आपको, ठीक है, दिस इज नोन एज प्रो एम्ब्रो। नेक्स्ट, each cell in the pro embryo is capable, ठीक है ना, टू डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट एम्ब्रो, यानी कि हर एक सेल के अंदर अपना कैलिबर है, पोटेंशियल है कि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एम्ब्रो का डेवलपमेंट कर सके। बट नेक्स्ट, 3 to 5 of these nuclei individually enclosure in somewhat irregular wall formation and become globular। भाई जनरली क्या होता है, जो एम्ब्रोनियल जो टुवर्ड द चलाचल एंड साइड सेल्स हैं, ठीक है, they remain functional actually and the cells in the micropylar end and the cells which are formed by the diploid nuclei, ठीक है, they are disintegrate। तो जो लोअर वन सेल्स रहेंगी दे बिकम समवॉट इरेगुलर, उनकी जो वॉल फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एंड दे आर बिकम ग्लोबुलर। These are known as pro-embryonal cells, each of which is produced an independent embryo. In Ephedra, this type of polyembryony without any cleavage is unique, ये भी important है, ठीक है। Because of the polyembryony occur without any cleavage is known as embrosac polyembryony। यहाँ पर कोई भी क्लीवेज नहीं हुई है, कोई डिवीजन नहीं हुआ एक तरीके से, तो इस टाइप की जो एम्ब्रोनी है उसको बोलेंगे पोली एम्ब्रोनी विदाउट क्लीवेज या फिर एम्ब्रोसेक पोली एम्ब्रोनी। इस प्रो एम्ब्रो ग्रो इनटू ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज सस्पेंसर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहले ग्लोबुलर होते हैं इस टाइप से राउंड शेप में, उसके बाद दे
start developing a tubular structure and this tubular structure is known as, यानी कि इस टाइप से, अगर इसको इस टाइप से, ठीक है, this tubular structure is known as suspensor. तो this one is the suspensor. Tube nuclei of the proembryo divided into the two, यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होगा वो डिवाइड करेगा इन द ट्रू सेल. बोथ ऑफ द न्यूक्लियाई मूव इनटू द ट्यूब भाई, और जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये यहाँ पर दिख रहा होगा इन द डायग्राम डी. एक सेकेंड, यू कैन से, अब हम ले रहे हैं इस एक सेल को भी, कोई भी एक सेल को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो. ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनी थी यहाँ पर सी स्टेज में, इसके बाद इन सेल के अंदर भी जो इनकी जो ग्रोथ है वो फर्दर स्टार्ट हो गई. उन्होंने क्या बना लिया, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना ली. इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नाम है ES स्टैंड फॉर एम्ब्रोनियल सस्पेंसर. ठीक है, तो ES स्टैंड फॉर एम्ब्रोनियल सस्पेंसर. आफ्टर दैट इसके अंदर जो न्यूक्लियाई था वो डिवाइड हुआ इनटू टू सेल एंड दीज ऑल टू न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द इट्स न्यूक्लियस. ठीक है, इतना यहाँ तक, डी तक. नेक्स्ट इज, हाँ जी, किसी को पूछना है कुछ? नो सर. ओके, इसके, हाँ जी, आपने सोचो इसका सेकंड पॉइंट था, 1 मिनट पीछे स्लाइड करना. ये यस सर. सर इसके अंदर 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्यों लिखा है सर? हुए तो 4 है सर. मैंने आपको थोड़ी देर पहले वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. दो साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी हैं. एक लेमन एंड बियर्ड था. उसने क्या बताया था कि जो जाइगोट होता है एक्चुअली उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगी. ठीक है, उसके बाद सेकंड डिवीजन, और ये दोनों सेल जो दोनों न्यूक्लियर बनी है, एक ऊपर की तरफ यानी टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड चली जाएगी और एक टुवर्ड द चलाचल एंड चली जाएगी. ठीक है, इसके बाद इसके अंदर डिवीजन होगा और 1 से 2 सेल बनाएंगी. इन 2 के अंदर फिर से डिवीजन होगा और 2 से फिर 4 बन जाएंगी. ऐसे ही ये जो थी इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन एंड फिर सेकंड डिवीजन. तो यहाँ पर 1, 2 और 3 डिवीजन हो गए ना. ओके सर, ओके सर. नेक्स्ट इज अब हम आ गए भाई यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, एक इस टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप हो गई है. ठीक है, दिस वन इज नोन एज सस्पेंसर. उखाड़ लिया मैंने, हटा लिया यहाँ से, ये डब्बा चिपका हुआ था ना, अब केबल आ गई यहाँ तक. तो इसके बाद क्या होगा, ये जो सस्पेंसर था इसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई आ जाएंगी. ठीक है, यहाँ तक भी. इसके बाद क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी बिटवीन द सेल टुवर्ड द माइक्रोपाइलर इज डिसइंटीग्रेट while the cell formed toward the chelazal end of the tube survive and called embryonial initial cell. यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो ऊपर वाली सेल थी दिस वन, ठीक है, दिस वन इज द डिसइंटीग्रेट, और जो नीचे की तरफ सेल आ रही है, ठीक है, दिस वन इज नोन एज एम्ब्रोनियल सेल. इट बिकम सर्वाइव एंड अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपकी एम्ब्रोनियल सेल है इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ होगी वो भी इसी बात है, ग्रो मच मोर ग्रोथ होगी और कैरी एम्ब्रोनियल इनिशियल डीप इनटू द प्रोसेल सेल. यानी कि अब क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है अभी अपने आप को सिंक कर लेगी इनटू द गेमेटोफिटिक टिश्यू. दिस एम्ब्रोनियल इनिशियल डिवाइडेड इनटू द प्रोक्सिमल सस्पेंसर सेल एंड ए डिस्टल एम्ब्रोनियल सेल. यानी कि अब आप यहाँ पर देखोगे इसमें, इसके बाद इसमें ये जो सेल थी हमारी, ये ऊपर वाली सेल की हम बात ही नहीं करें, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. ये जो नीचे वाली एम्ब्रोनियल सेल थी ये डिवाइड करेगी, तो डिवाइड बाय द ट्रांसफर डिवीजन एंड फॉर्म 2 सेल, वन इज दिस एंड अनदर वन इज दिस. उसके बाद जो नीचे वाली सेल थी कह सकते हो जो बेसल सेल थी उसके अंदर फिर से डिवीजन हो जाएगा और इसने इस टाइप से 2 सेल बना लेगी. द एम्ब्रो सेल डिवाइड, यानी कि जो अब सेल बनी है ना, यानी कि पहले क्या थी, ये स्ट्रक्चर थी, यहाँ पर 2 सेल थी. इसके बाद क्या हुआ,
ये जो ऊपर वाली है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, नीचे वाली थी इसको नाम रख दिया हमने एम्ब्रियोनिक इनिशियल सेल। एम्ब्रियोनिक इनिशियल सेल कहाँ आ गई, नीचे आ गई यहाँ पर। इसके अंदर अब डिवीजन होगा इस टाइप से, ट्रांसफर डिवीजन होगा और ये क्या बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। सॉरी, ये इस टाइप से डिवीजन होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर यानी कि पहले क्या थी, ये स्ट्रक्चर थी हमारे पास, और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई थी, ये जो न्यूक्लियाई है इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा लोग लाइक दिस, एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाली सेल है इसका नाम रख दिया हमने एम्ब्रोनियल एम्ब्रो सेल एक्चुअली, ठीक है, एम्ब्रो सेल। ये जो एम्ब्रो सेल है ये डिवाइड करेगी एंड फॉर्म द प्रॉपर एम्ब्रो विच कंटेन, अब इसके अंदर क्या होगा, रैपिडली डिवीजन होता रहेगा। और ये जो ऊपर वाली सेल थी ये फंक्शन करेगी एज ए सेकेंडरी सस्पेंसर, ठीक है। इसके अंदर डिवीजन होगा नीचे वाली के अंदर, और ये पहले लॉन्गिट्यूडल डिवीजन होगा और ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेगी। जैसे कि आपको पहले ये देखो, पहले इस टाइप की स्ट्रक्चर है ये ई में, उसके बाद फिर नीचे वाली जो सेल थी उसके अंदर फिर से ऐसे डिवीजन होगा, और अल्टीमेटली हमारे पास ये 3 सेल स्टेज बन जाएगी। ये प्राइमरी सस्पेंसर सेल थी एक्चुअली, और ये सेकेंडरी सस्पेंसर सेल है, और नीचे वाले जो 2 हैं दे आर एम्ब्रियोनियल सेल। अब ये जो 2 एम्ब्रियोनियल सेल हैं ये क्या बनाएंगी, ये इस तरीके से ग्रोथ होगी इनमें, तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये अपने आप को रैपिडली डिवीजन होगा, और जो डिवीजन होगा वो एक तरीके से कह सकते हो इन एवरी शेप होगा, कह सकते हो, या फिर कह सकते हो फ्री डिवीजन होगा भाई, और अल्टीमेटली रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा, और जो यानी कि अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, मासिव एम्ब्रो बन जाएगा एट इट्स चलाजल साइड, और ऊपर ये आपका सस्पेंसर रहेगा ऊपर दिस वन, और ये जो सेकेंडरी सस्पेंसर की 2 सेल हैं, यहाँ पर ये सिंगल सेल थी इसके अंदर फिर से डिवीजन, और ये 2 सेल बना लेंगी। अल्टीमेटली हमारे पास ई के बाद यानी कि ये स्ट्रक्चर है, और उसके बाद फिर ये लुक लाइक दिस एंड FGH, यानी कि अल्टीमेटली ये जो एम्ब्रो है ये इस तरीके से एम्ब्रो बन जाएगा, लुक लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें आप इसी में यानी कि लास्ट स्टेज यही है, एम्ब्रियोनिक मास बन जाएगा। ये जो एम्ब्रियोनिक मास है इसमें क्या होगा, 2 कोटिलेडन्स बन जाएंगे, यानी कि अब ये जो स्ट्रक्चर है आपको इस तरीके से दिखाई देगी अल्टीमेटली, ठीक है। दे आर 2 कोटिलेडन्स लुक लाइक दिस, और अल्टीमेटली इसकी चारों तरफ फिर वॉल बन जाएगी, और ये क्या बना लेगा, सीट बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये यहाँ पर आप देखोगे तो दे आर, जैसे कि इसमें जो कोटिलेडन्स लिखा हुआ है, तो 1 कोटिलेडन्स इज दिस वन एंड अनदर कोटिलेडन्स इज इस तरीके से दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अब एक्चुअली दिस इज द सीड स्ट्रक्चर। तो सीड में ऑब्वियस सी बात, अब इसके चारों तरफ क्या होगा, ये फीमेल गेमेटोफाइट रहेगा, और उसके बाद इसके ऊपर ये इंटीग्यूमेंट थे, ये ब्रैकेट थी, ये इसके बाद फिर न्यूक्लियस था। फीमेल गेमेटोफाइट मतलब जो आपके यानी कि दिस इज गेमेटोफिल टिश्यू, ठीक है ना, जो कि एज ए फंक्शन करता है फॉर द न्यूट्रिशन फॉर द दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अल्टीमेट मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, एक सेकंड। तो भैया आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें लास्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसको आप पढ़ लेना, कुछ नहीं होता। उसके बाद इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, दे आर इम्पोर्टेंट। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ऑर्नामेंटल, ठीक है। उसके बाद इन ट्रीटिंग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ एंड हे फीवर, इससे एक ड्रग्स निकलता है जिसका नाम है इफिड्रीन्स, जो कि बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है, और डिकॉक्टेशन के लिए यूज करते हैं रसिया, यानी कि डिकॉक्टेशन के लिए इसका जो रूट और स्टेम का एक इसकी रूट और स्टेम से एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस एंड
रेमेटिज्म। एक वर्ड आता है टिनिक्चर। टिनिक्चर क्या होता है? इज ए कंसंट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट मेड फ्रॉम द सोकिंग ऑफ द बार्क, बेरीज, लीफ, रूट्स और ऑफ वन और मोर प्लांट इन द अल्कोहल और वीगन। तो ये जो टिनिक्चर बनता है अगेन इफेक्टिव अगेंस्ट कार्डिक एंड सर्कुलरली स्टिमुलेट। तो ये बनता है इफिड्रा जियार्डियाना से, यानी इफिड्रा जियार्डियाना की जो रूट कह सकते हो या फिर लीफ कह सकते हो, ठीक है। दे आर यूज्ड इन एंड दे आर डिप्ड इनटू अल्कोहल एंड फॉर्म ए along with another plant, another herbal plant, and form a liquidy substance, and this liquidy substance is useful against cardiac and circulatory stimulants as a stimulant, यानी कि हार्ट डिजीज के लिए एक्चुअली यूजफुल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, है फीवर, उसके बाद सिफिलिस, उसके बाद ये आपका कार्डिक एंड सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट, ऑर्नामेंटल यूज है, फिटरी निकलता है, और कोई का और जो भी आपकी बुक में आप उनसे इसको कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड थी आई थिंक, यस थी लास्ट, कर लोगे इसको। यस Yes, sir. ये जो लास्ट वाली है जस्ट एम्ब्रोनियल डेवलपमेंट हार्डली पूछते हैं। इफिड्रा की अगर बताऊं मैं आपको स्टार्टिंग से, तो इफिड्रा में आपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, एक तो इफिड्रा की स्टेम का जो टीएस है वो कर लेना है, ठीक है। इनको चाहे नोट डाउन कर लो, इफिड्रा की स्टेम का टीएस हो जाएगा। उसके बाद स्टेम की मॉर्फोलॉजी, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है, थर्ड। उसके बाद फोर्थ फिर इसमें इसकी जो कौन है रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, यानी मेल कौन और फीमेल कौन की स्ट्रक्चर एंड उनके डेवलपमेंट तो वैसे शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और अल्टीमेटली इसका जो एम्ब्रोनियल डेवलपमेंट है, कुछ देखो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट डेवलपमेंट है वो, ठीक है, कर लो इसको। यस सर। ठीक है, फिर आज आई की क्लास होगी आपकी, कल फिर हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है।